Hello students, good morning. So students, all of you are most welcome in Akanksha classes, and today I am going to teach you some application of trigonometry chapter 9. Students, in this chapter we will find height of something like minarets, like poles, trees, etc. Also we will find the slant heights of objects like ये rope tied from the top of a pole to the ground, and also we will try to find the distance from a point on ground to the point of bottom of an object. Students, by using the learned trigonometric identities and ratios, we will find all this very easily. And first of all, we have to know some important facts. Students, what we see through horizontal plane is called horizontal line, but if we look upper than horizontal line, this is called angle of elevation, and when someone looks downward from horizontal line, this is called angle of depression. You may imagine about the angle of depression when you are standing on your roof and are seeing the someone sitting on the bottom of his house door. Agar this means this is the horizontal line. This is the horizontal line. When you will see down from horizontal line, this is called angle of depression. Angle of depression. And when you will see upward than horizontal, it is called angle of elevation. So students, by using these two types of angles, angle of elevation and angle of depression, students, these line of sights means when we see something from a point, it forms an imaginary line from our eye to that object. For example, let this eye is looking this aeroplane, and this is the imaginary line drawn from this eye to that aeroplane. So this line is called line of sight, and will act as hypotenuse of a right angle triangle. Okay, so let's try to find solutions of exercise 9.1 with me. I am Sushil sir. You are most welcome. So students, exercise 9.1, question first. ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ये 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड. ये सर्कस आर्टिस्ट कोई सर्कस का कलाकार है, इज क्लाइंबिंग जो चल रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे, 20 मीटर लॉन्ग रस्सी पे चल रहा है. विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो रस्सी कसकर बांधी गई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, किसी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से कसकर बांधी गई है, टू द ग्राउंड, जमीन पर. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. दिस मीन्स ये हाइट क्या है, ये फाइंड करना है पोल की. इफ द एंगल मेड बाय द रोप, इफ द एंगल, अगर यहां से हम ऑब्जर्व करें, दिस मीन अगर इस पॉइंट से टॉप को ऑब्जर्व करें तो यहां हमारी आई होगी और यहां पे टॉप होगा. तो टॉप को आई से जाने वाली जो लाइन ऑफ साइट होगी वह ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी और कहलाएगी एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या कहलाएगी? एंगल ऑफ एलिवेशन.
So if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, तो students अकॉर्डिंग टू फिगर ये हमारा एक्सरसाइज एक्सरसाइज 9.1 है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और हियर हाइपोटेनस 20 मीटर और इस एंगल के लिए हमने 1000 टाइम बताया कि जिस एंगल के बारे में बात हो उसको डिस्क्राइब करने वाला लेटर परपेंडिकुलर में नहीं आएगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा AB और हाइपोटेनस AC। तो हमें जिस साइड को निकालना होता है हम उस साइड और एक नॉन साइड का डिस्कशन क्वेश्चन में कर देते हैं। तो लेट हाइट ऑफ पोल ABB H मीटर्स। एक पॉइंट की फिगर यहां पे क्लियर है। अकॉर्डिंग टू फिगर इन राइट एंगल ट्रायंगल in right angled triangle ABC AB upon AC equals perpendicular upon hypotenuse equals sin 30 degree और AB means perpendicular upon hypotenuse। here AB की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स H for height and AC means 20 मीटर ये नोन है। sin 30 की वैल्यू 1/2 है और फाइंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2H इक्वल्स 21 जा 20 मीटर सो दैट H इक्वल इधर को 2 ट्रांसफर मारेंगे तो क्या आएगा अपान 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 10 जा 20 और H इक्वल 10 मीटर। नाउ टेक स्क्रीनशॉट as soon as possible। So students refer to question number 2 of exercise 9.1। we are given ये 3 breaks A3 AB breaks from point C due to storm and broken part CB bends and the broken part CB bends so that the top B of the tree touches the ground at point B making an angle of 30 degree।
विद द ब्रेकिंग पॉइंट, जिस पॉइंट से ब्रेक हुआ वहां पे 30 डिग्री का एंगल बना रही है। द डिस्टेंस बिटवीन द टचिंग पॉइंट बी एंड over the top of a touching point ground B from its root is 8 meter. Find the height of the tree. So friends, यहाँ पे लेट क्या लेते हैं, let AB be the required tree with height h meter and in storm और तूफान में breaks from point C फ्रॉम पॉइंट सी। तो ए भी हमारा क्या है, ट्री है, 8 मीटर हाइट की, और स्टार में वह पॉइंट सी से ब्रेक हो करके और जो टूटता है वो पार्ट जाकर के जमीन पे टच करता है पॉइंट बी पर। अगर वह ब्रेक हुआ टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो और वह ट्री के रूट से, ट्री के जड़ से 8 मीटर दूर टच कर रहा हो, तो टोटल ट्री की हाइट हमें निकालनी है। तो हमने ले लिया लेट ए बी बी द रिक्वायर्ड ट्री। मान लेते हैं कि ए बी जो है वही रिक्वायर्ड ट्री है। एंड स्टॉर्म ब्रेक्स फ्रॉम पॉइंट सी, और पॉइंट सी से टूट जाता है such that CB dash equal x मीटर, यानी x मीटर ऊपर की लंबाई नीचे यानी h माइनस x छोड़ के ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। सो फ्रेंड्स, नाउ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में तो हम एक नोन एक अननोन, तो हम हमारे पास क्या होगा 30 के लिए BA ये हमारा बेस होगा और BC हमारा हाइपोटेनस होगा। तो हम देखते हैं cos 30 इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल बेस की वैल्यू AB, हाइपोटेनस की वैल्यू B डैश C इक्वल 8 मीटर बाई x मीटर, और 8 बाई x इक्वल cos 30 की वैल्यू और 8 बाई x इक्वल्स cos 30 वैल्यू √3/2, और क्या जाएगा √3x इक्वल्स 8 to the 16, so that x equals अब इधर अगर हम रेशनलाइजेशन करें तो दोनों तरफ 3 से तो हो जाएगा 16√3, 3x इक्वल 16√3 और x इक्वल 16
√3/3। ये आया x की वैल्यू, या सीधे x की वैल्यू आती है 16/√3, 16/√3। अब आता है x माइनस एक्स। अब दे देते हैं अगेन हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर अपान या बेस अपान परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर अपान बेस ले लेते हैं। अगेन 10 10 30 इक्वल AB P/B परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल 10 30 इक्वल AB। परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर हमारा होगा AC। परपेंडिकुलर क्या होगा? AC बाई AB। और AC की वैल्यू x माइनस एक्स अपान AB की वैल्यू क्या है? 8। AB की वैल्यू 8 इक्वल 10 30 की वैल्यू 1/√3। और यहाँ h माइनस एक्स इक्वल 8 को रिटायर पर क्या आता है? 8/√3। अब वैल्यू रख लेते हैं। और h इक्वल्स 8/√3 प्लस x। और h इक्वल अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू क्या पाते हैं? 16/√3। तो क्या जाता है? 8/√3 प्लस x की वैल्यू 16/√3। डिनोमिनेटर इक्वल है, क्या हो जाएगा? 16 और 8 24/√3। अब हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या था? 24√3 अपान √3 इंटू √3। तो बच्चों क्या ये हो जाता है? 24√3/3 मीटर क्या आ गया? 8√3। और h इक्वल 8√3 मीटर्स। स्टूडेंट्स आंसर लिख लें और प्रॉपर लें स्क्रीनशॉट। नाउ रेफर टू क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू व्हिच ये कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल two slides for the children to play in a park। कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी पार्क में चिल्ड्रन को प्ले करने के लिए 2 स्लाइड्स लगाने का प्लान करती है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, जो 5 years से बिलो एज के बच्चे हैं उनके लिए वह इस प्रकार का स्लाइड लगाती है जिसकी हाइट होगी 1.5 मीटर और जिसका स्लाइड ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमने लेट कर लिया कि इसकी जो स्लाइड की लेंथ होगी वो x होगी और एंड व्हेयर्स फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जबकि बड़े बच्चों के लिए शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, उसमें वह 3 मीटर की ऊंचाई पर स्लाइड रखना चाहती है विद एंड इंक्लिन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और जमीन से
जमीन से वह 60 डिग्री का एंगल बनाती है, बनाना चाहती है। अब आपको निकालना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। ईच केस में स्लाइड का लेंथ क्या होना चाहिए। तो लेट AB सॉरी AC, लेट AC and PR are the required स्लाइड्स। मान लेते हैं कि जो AC है और PR है यही रिक्वायर्ड स्लाइड की लेंथ है, रिक्वायर्ड स्लाइड की लेंथ है। तो हम दोनों ट्रायंगल में यहां निकाल लेंगे h बाई पी यानी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर इक्वल टू कोस थीटा से x की वैल्यू आ जाएगी। और इसी प्रकार इसमें पी आर अपान पी क्यू इक्वल टू यानी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर इक्वल टू कोसेक 60 से आ जाएगी वैल्यू y की। तो स्टूडेंट्स x और y की रिक्वायर्ड वैल्यू ही स्लाइड की लेंथ होगी। तो फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, फॉर स्मॉल चिल्ड्रन इन ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के फिगर हैं। यहाँ देखते हैं हम AC अपान AB इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री। और AC की वैल्यू x है, AB की वैल्यू 1.5 है और कोसेक 30 की वैल्यू 2/1 है। और x बन जा x इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 और x इक्वल 15 टू जा 30 3 मीटर। एंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन एल्डर चिल्ड्रन के लिए उसने स्लाइड पी क्यू आर लगा रखी है जहां स्लाइड की लेंथ पी आर है। तो हम लिख लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में देख लेते हैं तो क्या होगा। पी क्यू आर में भाई हमें वाई की लेंथ चाहिए तो लिख लेते हैं पी आर बाई नॉन साइड पी क्यू। पी आर की लेंथ अननोन है, वाई लेट किया हूं, पी क्यू की लेंथ दिया है 3 मीटर इज इक्वल टू। अब ये क्या है पी आर। अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूं तो आर छोड़ दीजिए, पी क्यू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, पी क्यू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और पी आर तो फिक्स है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आ गया कोसेक थीटा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। और अब निकाल लेते हैं y/3 y/3 इज इक्वल टू कोसेक 30 60। तो कोसेक 60 वैल्यू क्या होगी
2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, y इक्वल 3 को इधर ट्रांसफर तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 अपॉन √3। इसका रेशनलाइज कीजिए तो 2 इंटू 3 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। अब क्या आ जाएगा ये आपका 2 इंटू √3 इंटू 3 और यहाँ √3 क्या हो गया 3, क्या आ गया 2√3 मीटर। तो अब आंसर लिख लेते हैं इस प्रकार से, x की वैल्यू जो स्मॉल चिल्ड्रन के लिए उस स्लाइड की लेंथ क्या आई 3 मीटर, 3 मीटर्स, एंड y जो कि एल्डर चिल्ड्रन के लिए है 2√3 मीटर, इसकी लेंथ आई। आप चाहें तो √3 की वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस प्रकार से स्टूडेंट्स आंसर आपके आ गए 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। तो फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। एंड क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ इलेवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ ए h मीटर हाई टावर, the angle of elevation of the top of a h meter tower BC from 30 meter, its bottom from point A is observed 30 meter angle of elevation. You have to find the height of the tower. Let BC be h meter high tower, and angle of elevation of point C is seen from 30 meter away, point A equal 30 degree. तो in right angle triangle ABC, tan 30 degree, tan 30 degree equal P by B, perpendicular upon base। 30 A है, A को छोड़ दीजिए, BC बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो एंगल को पहुंचाता हो 90 पे, तो A को पहुंचाता है AB, तो हो जाएगा AB। और BC की वैल्यू हमने h सेलेक्ट किया है, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी h मीटर, बाई AB की वैल्यू क्या है 30, AB की वैल्यू क्या है 30 मीटर इक्वल्स tan 30। और ये फिगर हमारा क्वेश्चन नंबर
4 का है, अब फिगर जोड़ ड्रा करेंगे और h बाई 30 इक्वल tan 30 की वैल्यू रखिए 1/√3 और h इक्वल 30 को इधर लाएंगे, इधर 1/30 इधर 30/1 तो 30 1 जा 30/√3 डिस्लेक्शन कर दीजिए तो 30√3/√3 इंटू √3 ये हो जाएगा 30√3/3 काट दीजिएगा तो आ जाएगा 10√3 10 h इक्वल टू 10√3 मीटर्स। आंसर फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड नाउ रिफर टू क्वेश्चन नंबर 5। ये काइट AB is flying at a height of 60 meter from the ground. The string attached to the kite AB, जो स्ट्रिंग अटैच है पतंग से, उसकी लेंथ हमने x मीटर लेट किया है, इज टाइड टेम्परेरली ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड A, यानी पॉइंट A, ग्राउंड पर कोई पॉइंट A है, वहां से टाई किया गया है स्ट्रिंग, यानी पतंग की डोर को बांध दिया गया है पॉइंट A से, जो कि ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री का एंगल ऑफ इलावेशन बना रहा है। और अगर इसकी हाइट 60 मीटर हो तो हमें एज्यूम करना, हमें निकालना है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो झुकाव है जमीन के साथ पतंग की डोर की वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो पतंग की डोर की लंबाई फाइंड करना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आप जानते हैं कि डोरी अक्सर लटकती रहती है, डोरी तनी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि डोरी में कोई झोल नहीं है। तो स्टूडेंट्स लेट B is the kite, B is the kite, यहाँ B जो है ये काइट है, is flying 60 meter above the ground, 60 मीटर above फ्लाई कर रहा है। इट्स स्ट्रिंग, इसकी डोर BA is tied at ये पॉइंट ये ऑन द ग्राउंड। तो लेट कर लेते हैं कि ये हमारा काइट है जो ग्राउंड से जो ग्राउंड से 60 मीटर, जिसे हम हाइट कहते हैं, 60 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है। अगर पतंग में बंधी हुई डोर इस पॉइंट से कुछ मीटर की डिस्टेंस पॉइंट ए से बंधी हो और 60 डिग्री का एंगल बना रही हो तो हमें AB की लेंथ निकालनी है ग्राउंड। We need to find AB. तो let AB equal x meter. We need to find
ए बी इक्वल यक्स, यही फाइंड करना है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट लिखते हैं हम लोग, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इट राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा, ए सी बी। हमें निकालना है ए बी, तो लिख लेते हैं ए बी बाई, अब ए बी हमारा अननोन है, अब एक नोन साइड लेंगे तो क्या लेंगे, बी सी विथ रेस्पेक्ट टू एंगल 60, वहां पे ए है तो ये हाइपोटेनस फिक्स है, लेंथ लेते हैं यक्स बाई बी सी की वैल्यू 60 मीटर। अब देखते हैं एंगल 60 के लिए क्या है, ये हाइपोटेनस तो है ही, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या आएगा, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री। अब यहां पे देखते हैं x बाई 60, x बाई 60 मीटर इक्वल्स कोसेक 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो ये उनकी रेसिप्रोकल है, तो क्या जाएगा 2/√3। हम जानते हैं कि अगर 60 को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, 2 × 60 अपॉन √3। अब फिर एक्सप्लेनेशन करो, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर को हम इक्वेशन नहीं लिखते, तो क्या हो जाएंगे 2 × 60 × √3/√3 × √3 और यहाँ पे x इक्वल टू आएगा, तो r x इक्वल टू आ गया हमारा 60 2 × 60 √3/3 काट देते हैं, 3 × 2 = 6, 20 आ गया। इस प्रकार स्टूडेंट 20 × 2 = 40 क्या था, 40√3 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। अब आप ले लीजिए स्क्रीन 40√3 मीटर। एंड इन क्वेश्चन नंबर 6 ये 1.5 मीटर टॉल बॉय, कोई 1.5 मीटर लंबा लड़का है इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। दिस मीन्स कोई ए बी डैश, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ए बी डैश 30 मीटर हाइट, 30 मीटर हाई कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से सम मीटर डिस्टेंस में यहाँ बी डैश सी डैश की डिस्टेंस पर एक 1.5 मीटर का कोई लड़का है जो स्टैंड है, और यहां से उसकी जो आई से रे यानी जो उसका जो साइट है, विजन साइट, ये लाइन यहाँ पे बना रही है 30 डिग्री का एंगल ऑफ इलेवेशन इसके टॉप का बना रही है। फिर बोल रहा है द एंगल ऑफ इलेवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। यह लड़का यहाँ से इसके आई से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन 30 डिग्री फॉल होता है, वो पाया गया। तो स्टूडेंट्स हम इसकी हाइट 1.5 मीटर पे एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं सी, और स्टूडेंट्स
इसका एंगल ऑफ इलावेशन इंक्रीजेज, द एंगल ऑफ इलावेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60। अब ये लड़का क्या करता है, आगे बढ़ता है, पॉइंट डी तक आता है, तो जो एंगल ऑफ इलावेशन 30 था वह इंक्रीज करके अब 60 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो स्टूडेंट्स फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। इसके द्वारा ये बॉय जो पॉइंट सी डैश से पॉइंट बी डैश की ओर गया, वह इस दरमियान इस समय कितनी डिस्टेंस चला, जिससे ये दूरी जो ये पॉइंट डी तक पहुंचा 1.5 मीटर। ये लड़का, इसकी हाइट है, ये टाल है, इसकी ऊंचाई है लड़के की, तो हमें निकालना क्या है, यक्स मीटर। हमने मान लिया है कि यहाँ सी और डी की बीच की डिस्टेंस यक्स मीटर है, तो हमें यही डिस्टेंस निकालना है। तो लेट्स ट्राई, आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं फटाफट। तो डालते हैं लेट ए बी डैश बी द 30 मीटर हाई, 30 मीटर हाई बिल्डिंग मान लेते हैं कि ये बी डैश 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, एंड ये 1.5 मीटर टाल बॉय सी डैश, 1.5 मीटर बॉय सी डैश, सी डैश फाइंड्स एंगल ऑफ इलावेशन, एंगल ऑफ इलावेशन एट ये बी 30 डिग्री, 30 डिग्री एंड स्टार्स, और अभी चल देता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर चल देता है, एंड फ्रॉम द पॉइंट डी द बॉय उसकी लेंथ, उसकी हाइट है 1.5 मीटर। अब यहाँ बॉय को हम सी डैश सी से डिनोट कर रहे थे, यहाँ डी डैश डी से डिनोट कर रहे हैं। जो बॉय है वो डी डैश है, यहाँ पे फाइंड्स एंगल ऑफ इलावेशन एट सेम पॉइंट ये टू बी, उसी पॉइंट ए पर कितना पाता है वो एंगल ऑफ इलावेशन 60 डिग्री। नाउ अब सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं तो ये अब हम किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल
ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ये BD, ABD के बारे में बात कर रहे हैं। किसके टर्म में बात करेंगे? एक नोन दूसरा अननोन। तो नोन साइड हमारा क्या है? AB है और अननोन साइड क्या है हमारा? BD। तो निकाल लेते हैं AB बाई BD, AB बाई BD विथ रेस्पेक्ट टू एंगल D। D के क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन BD क्या है यहाँ? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और है ना AB की वैल्यू क्या है? 28.5। क्यों? क्योंकि 30 माइनस लड़के की हाइट माइनस करना पड़ेगा। तो 28.5 बाई B की वैल्यू अननोन है तो सीधे लिखिए BD। क्या लिखिए? BD इक्वल tan 60 की वैल्यू क्या लिखेंगे? √3। अब BD की वैल्यू आप निकाल लीजिए और BD की वैल्यू क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा √3 BD। √3 BD इक्वल 28.5 मीटर। सो दैट BD इक्वल, अब BD की वैल्यू क्या होगी? जब आप √3 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 28.5 मीटर अपॉन √3। इसका डिस्टिंक्शन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 28.5 इंटू ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा नीचे अब √3 और √3 का मल्टीप्लाई करने पे आ गया 3 आ जाएगा। अब 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 तो इक्वल टू क्या आ गया? 9.5 √3, 9.5 √3 मीटर। अब यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं हम एक कि BD की वैल्यू क्या आ गई है? 9.5 √3 मीटर। अब ले लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? अब ABC ले लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। तो AB अपॉन BC पे रेस्पेक्ट टू एंगल C क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। और अब यहाँ पे हम देखते हैं AB की वैल्यू सेम है 28.5 अपॉन BC। अब BC की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? BC की वैल्यू तोड़ेंगे और लिखेंगे CD प्लस BD। पहले BC लिखेंगे, BC इक्वल्स tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। और
28.5 बाई BC इक्वल 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और तो क्रॉस तो यहां हो जाएगा BC बन जा BC इक्वल टू 28.5√3 28.5√3 और अब BC की वैल्यू क्या रख देंगे हम BC तो BD प्लस CD क्योंकि ये जो BC है ये BD और CD के सम के बराबर है। यहां आप देख रहे हैं इक्वल टू 28.5√3 मीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम BD की वैल्यू रख देंगे तो BD की वैल्यू क्या निकाले हैं यहाँ पे BD की वैल्यू निकाले हैं 9.5 ये निकाले BD की वैल्यू 9.5√3 मीटर। अब यहाँ लिखेंगे 9.5√3 प्लस CD इक्वल 28.5√3। अब अगर हम CD को इधर रोक लें बाकी को ताकत तो क्या आएगा और CD इक्वल 28.5√3 माइनस 9.5√3 और अब CD इक्वल टू यहां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आएगा 28 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5 में से 5 गया 0 और 28 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 19 क्या बचेगा 19। इस प्रकार आपका आंसर आ जाता है 19√3 मीटर्स। तो आपका आंसर क्या आ गया 19√3 मीटर्स। सो स्टूडेंट्स आंसर लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स in the question number 7 from a point on the ground let that point be D, the angles of elevation। अगर यहां से कोई ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ इलावेशन ही बनना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल से ऊपर उठी कि एंगल ऑफ इलावेशन हॉरिजॉन्टल नीचे झुकी आंखें हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे झुकी तो क्या बनाएंगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हमारी आंख हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर उठेगी क्या बनाएगी एंगल ऑफ इलावेशन। तो लेट्स ट्राई। तो ये जो हमारी आई यहाँ पे है लाइन ऑफ साइट यहां से जो निकलेगी जो एंगल ऑफ इलेवेशन बनाएगी तो वह देखती है एक टावर जो टावर BC है जिसकी हम हाइट h मीटर लेट किए हैं उस टावर के बेस उस टावर के बॉटम का एंगल ऑफ इलेवेशन 45 डिग्री और अगर उसी पॉइंट से उसी टावर के बॉटम के बजाय टॉप का एंगल ऑब्जर्व किया जाता है तो 60 डिग्री फाइंड होता है। हमें बताना है हाइट ऑफ टावर कि टावर की हाइट क्या है टावर की हाइट क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है तो हमने क्या किया है लेट सबसे स्टार्ट किया लेट मान लीजिए लेट D is the point मान लीजिए D ही वह पॉइंट है फ्रॉम व्हेयर जहां से एंगल ऑफ
elevation angles of elevation of angles of elevation of bottom of tower, bottom of टावर के बॉटम का एंगल BDA, एंगल BDA इक्वल 45 डिग्री and top of tower and top of tower angle CDA, angle CDA, angle CDA equal 60 degree, equal 60 degree and AB equal 20 meter high building, 20 meter high building. We need to find, हमें फाइंड करना है height of tower, height of tower, that is BC equal H equal क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो अब हम पहले इस छोटे ट्रायंगल ABC की बात कर लेते हैं, ABC की बात कर लेते हैं। तो लिखते हैं in right angled triangle BAD स्टूडेंट्स, जहां BA या AB वह बिल्डिंग है 20 मीटर हाई जिस पर BC टावर खड़ा है। तो हम देखते हैं इसमें अगर हम 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो AB क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ हम AD की लेंथ निकाल लें क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में AD हमारी सेम बेस रहेगी। और ये फाइंड कर लेते हैं क्या होगा, AB यानी एक नोन एक अननोन से फाइंड कर लेते हैं। तो अननोन वाला क्या हमारा AD, तो AD को ऊपर रख देते हैं AD बाई AB। अब देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू एंगल D, तो एंगल D के लिए AD हमारा क्या है, बेस है और AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या आता है बच्चों, सर बेस बाई परपेंडिकुलर, कॉट ज्यादा किया जाती है, कॉट 45 डिग्री। और अब यहां पे देख लेते हैं AD की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो लिखिए AD अपान AB। अब AB की वैल्यू दिया है 20 मीटर इज इक्वल टू cot 45 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू होती है 1। अब और AD इक्वल टू, अब यहाँ cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है और इंटू 20 मीटर। और AD इक्वल 20 मीटर। यहां मिल जाता है जिस पॉइंट से ऑब्जर्व किया जा रहा है उस पॉइंट की बिल्डिंग के बेस यानी बिल्डिंग के बेस से डिस्टेंस। तो बिल्डिंग का बेस पॉइंट यानी
ये इसका बॉटम है पॉइंट ए, वहां से डिस्टेंस कितना फाइंड कर लिए 20 मीटर है। अब स्टूडेंट्स नाउ अब हम निकाल लेते हैं नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, ऑन राइट एंगल ट्रायंगल CAD की बात कर लें, CAD की बात करते हैं। तो जब CAD की बात करते हैं स्टूडेंट तो क्या लिखते हैं हम CA, क्योंकि अब की बार हमारा अननोन क्वांटिटी BC जिसको हमें फाइंड करना है उसी में हम निकालते हैं CA by AD विथ रेस्पेक्ट टू एंगल 60 डिग्री। तो इसलिए CA क्या होगा हमारा, क्या दिख रहा है, एंगल का अपोजिट साइड यानी D को छोड़ दिया जाए तो क्या बचा AC। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और AD हमारा बेस है। तो क्या आएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और सो स्टूडेंट्स देख लेते हैं CA की वैल्यू, CA की वैल्यू क्या था सर, तोड़ दीजिए AB प्लस BC, AB प्लस BC बाई AD। अब AD की वैल्यू तो भाई 20 मीटर आई है, रख दीजिए 20 मीटर। tan 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3। और साफ कर लेते हैं तो AB, अब AB की वैल्यू क्या है बच्चों 20 मीटर। तो देखिए 20 मीटर प्लस BC अपान 20 मीटर, तो इस 20 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू √3, इक्वल टू √3। और स्टूडेंट्स यहां पे हम 20 मीटर प्लस BC लेके आ रही क्या आ जाएगा 20 √3 मीटर। और अब हम BC को इधर रोक लेते हैं। BC की वैल्यू क्या है, BC जिसे हमने h माना है, तो BC इक्वल 20 √3 मीटर माइनस 20 मीटर। और अब BC के लिए रख दीजिए h, तो रख देते हैं h स्मॉल h इज इक्वल टू, अब इन दोनों में हम 20 मीटर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है √3 माइनस 1 20 मीटर। तो क्या अब यहां पर आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी निकाल लीजिएगा, या यही सीधे आंसर आपका आ जाएगा 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। यही आंसर आ गया आपका। तो स्टूडेंट्स अब लिख लीजिए आंसर और ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 ये स्टैचू BC 1.6 मीटर tall, the height of statue is 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। ये h मीटर हाई एक पेडेस्टल है AB, इसी के ऊपर 1.6 मीटर हाई स्टैचू लगा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के किसी पॉइंट D से द एंगल ऑफ इलावेशन मीन्स हॉरिजॉन्टल से ऊपर देखा गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर देखा गया। तो यहां से एंगल ऑफ इलावेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू एंगल CDA
डी ए, एंगल सी डी ए इक्वल 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट डी से द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल पॉइंट बी, तो बी डी ए, एंगल बी डी ए क्या फाइंड हुआ 45 डिग्री, क्या हुआ 45 डिग्री। तो वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ पेडेस्टल ए बी। तो ए बी को हमने लेट कर दिया है एच, इसी को फाइंड करना है। तो क्वेश्चंस आइए सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी बी एच मीटर हाई पेडेस्टल PEDESTL पेडेस्टल लिख लीजिए, मतलब होता है चबूतरा। तो h मीटर पेडेस्टल, लेट ए बी बी h मीटर हाई पेडेस्टल ऑन विच, जिस पर ये 1.6 मीटर हाई स्टैचू नेम BC is fixed such that from some distance of at point D एंगल CDA इक्वल 60 डिग्री, एंगल BDA इक्वल 45 डिग्री एंड we need to find हमें फाइंड करना है, we need to find AB means height of pedestal AB इक्वल H। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या एंगल लिया है, CDA। तो जो एंगल लिया है उसी ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। तो हम पहले यहाँ बात करते हैं छोटे ट्रायंगल की, ABD की। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD की बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ABD देख लेते हैं क्या है। इस अगर हम बात करेंगे 45 डिग्री यहाँ पे बन रहा है एंगल BDA क्या बन रहा है 45 डिग्री। तो हम 45 के सामने AB बाई AD। अब
45 के लिए ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और ए डी क्या है, बेस, इक्वल टू क्या होता है, tan 45 डिग्री, और ए बी की वैल्यू क्या रख देते हैं, एच अपॉन ए डी इज इक्वल टू 1, क्योंकि tan 45 वैल्यू 1 होती है, और ए डी बन जा, ए डी इक्वल एच आता है, एच की वैल्यू ए बी, एच की वैल्यू ए बी है। तो अभी हम यही लेकर के अब हम निकालते हैं दूसरे एंगल के बारे में बात करते हैं, सीडीए की। तो अब सीडीए किस में है, इन ट्रायंगल सीएडी। अगेन इन ट्रायंगल सीएडी, सीएडी में देख लेते हैं। तो सीएडी में क्या होगा स्टूडेंट्स, सीएडी में देख लेते हैं एसी बाई एडी, एसी बाई एडी इज इक्वल टू 60 से बात हो रही है, तो यह है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एसी की वैल्यू क्या है बच्चों, बीसी प्लस ए बी बाई ए डी इक्वल्स tan 60 डिग्री। और अब यहां BC लिख लेते हैं, तो BC की वैल्यू क्या है, 1.6 प्लस AB की वैल्यू क्या है, एच, AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू भी एच आई है, और tan 60 की वैल्यू क्या है, √3। सो स्टूडेंट्स, और फिर से आता है, क्या आता है हमारे पास, 1.6 मीटर प्लस एच इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, √3h, आप यहां लिख लेते हैं √3h माइनस एच इक्वल्स 1.6 मीटर। और आगे देख लेते हैं तो क्या आता है, इन दोनों में एच कॉमन ले लेते हैं, एच कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, √3 माइनस 1 इक्वल्स 1.6 मीटर। और स्टूडेंट्स आप एच की वैल्यू निकालते हैं, तो एच इक्वल 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। लेकिन आप जानते हो हमें क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, 1.6 इंटू, अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। और एच इक्वल यहां हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1
मीटर अपान √3 -1 √3 + 1 का क्या हो गया, √3 का स्क्वायर, यानी a - b a + b, तो ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 मीटर अपान √3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1, और h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 + 1/2, और h इज इक्वल टू 2, 0 से 0, 2 8 जा 16, तो क्या आ जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर आ गया है। तो आप देख लीजिए। और स्टूडेंट्स, अब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो अब बस इतना ही, बाकी कल के लिए गुड मॉर्निंग।